students, how are you? I am fine. I hope all of you are fine, and I am also fine. And even I am I hope you are enjoying your studies at your home. And today, what we are going to learn? Already, I have given you many more word meanings of chapter 1. Okay, class 7th. I have given you the many more word meanings of chapter 1 already, and I hope that you are reading your work day by day. You are not keeping it as a pending work that we will learn that work tomorrow, day after tomorrow. No, don't do this type of things. It will make a burden to you. Okay, so what you have to do, the work which we have given on the same day itself, you have to learn that. Today we are going to learn some more word meanings of your chapter 1. So let's start now. Despite, D-E-S-P-I-T-E, despite. Despite means बावजूद, इसके. Despite means बावजूद, इसके. Deployed. Deployed means D-E-P-L-O-Y-E-D. Deployed. Deployed means moved into position for military action. Moved into position. Position means एक स्थिति. Okay, means उस स्थिति में तैनात होना. किस स्थिति में तैनात होना? एक मिलिट्री, एक सैनिक के रूप में तैनात होना. ओके, तैनात करना. Deployed means moved into position for military action. तैनात करना. Zones. Zones. Z-O-N-E-S. Zones. Zones means area. Area means क्षेत्र. Okay. Zones means area. Area means क्षेत्र. Initially, I-N-I-T-I-A-L-L-Y. Initially means शुरू में या आरंभ में. Initially means शुरू में या आरंभ में. U-N-A-F-F-E-C-T-E-D. Unaffected. Unaffected means अप्रभावित. Unaffected means अप्रभावित. Fairly, F-A-I-R-L-Y, fairly. Fairly means ईमानदारी से. Fairly means ईमानदारी से. Inhabitants, I-N-H-A-B-I-T-A-N-T-S. Inhabitants. Inhabitants means people who live there. इनसे एक प्रवास स्थान जो होता है, जहाँ पर निवास किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्टिकुलरली एक रीजन होता है. कहाँ मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पर वो रह सकते हैं. जैसे कि हम जिस जगह पर रहते हैं उसे भी हम इनहैबिटेंट कह सकते हैं. सो इनहैबिटेंट्स पीपल हु लिव देयर. लोग जहाँ पर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निवासी. मेंटर, M-E-N-T-O-R. मेंटर. मेंटर मीन्स विश्वसनीय, सलाहकार या उपदेशक. जैसे कि आपको किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो आपको जो भी सलाह देगा वो सही देगा. इस हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं? मेंटर. वी कॉल इट हिम एज अ मेंटर. मेंटर मीन्स विश्वसनीय, सलाहकार या उपदेशक. ओके. नाउ ट्रेड. T-R-A-D-E. ट्रेड. ट्रेड मीन्स व्यापार. ट्रेड मीन्स व्यापार. Yes, students, know what you have to do? You have to take the screenshot now. So take the screenshot, students. Yes, students, now we are going to learn the next word meanings of the chapter. Okay, so let's start now. Keep concentration, listen to me properly, pronunciate them how I am pronunciating. Okay, so let's start now. Dominated. Dominated, D-O-M-I-N-A-T-E-D. Dominated. Dominated means have power and influence over. Have power and influence over means जैसे कि आपके पास कोई शक्ति है जिससे आप किसी पर शासन या राज्य कर सको या शासन करना, जिसे हम क्या कहते हैं? Dominated means have power and influence over means शासन करना. Next is altercation. What is this? Altercations. Altercations means arguments. Okay. A-L-T-E-R-C-A-T-I-O-N-S. Altercations. Altercations means arguments, वाद विवाद या बहस. जैसे कि किसी बात को लेकर जब किसी के बीच में वाद विवाद भी कह सकते हैं उसको हम, या बहस भी कह सकते हैं. यस. नेक्स्ट इज articulate. What is this? Articulate. A-R-T-I-C-U
LATE, articulate. Articulate means speak clearly or in details. Okay, articulate means speak clearly or in details, यानी संक्षिप्त रूप से किसी के सामने कोई बात रखना. Okay, next is narrow confines. Narrow confines means limitations. एक सीमाएं होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? narrow confines. NARROW, narrow confines. CONFINES, confines. narrow confines, limitations, संकीर्ण सीमाएं. Okay, next is crescendo. What is this? Crescendo. Crescendo means climax. जैसे कि चरण सीमा जो होती है, अंतिम सीमा जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स. CRESCENDO, crescendo. Crescendo means climax. Next is great gusto. GREAT, great. GUSTO, gusto. Great gusto. Great gusto means a lot of enjoyment and enthusiasm. A lot of enjoyment and enthusiasm. Enjoyment means आनंदित and enthusiasm means मनोरंजन, जिसे हम कह सकते हैं. Okay, next is mundane matters. What is this? Mundane matters. MUNDANE, mundane. MATTERS, matters. Mundane matters means boring things. जैसे कि मामूली सी जो बातें होती है, चीजें होती है, उनको हम क्या कहते हैं? mundane matters. नेक्स्ट इज कंसल्टेड. कंसल्टेड मीन्स किसी से किसी चीज के बारे में हम बातचीत करते हैं, उसे हम कंसल्टेड कहते हैं. CONSULTED, कंसल्टेड. कंसल्टेड मीन्स विचार विमर्श. कंसल्टेड मीन्स विचार विमर्श. नेक्स्ट इज utmost. What is this? Utmost. UTMOST, utmost. Utmost means अत्यधिक या अधिकतम. Utmost means अत्यधिक या अधिकतम. Next word meaning is unique. UNIQUE. यूनिक को वैसे हम एकमात्र भी कह सकते हैं. एकमात्र का मतलब ये होता है कि इसके अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं है. Unlike anything else means जैसे कि उस जैसी चीज ही, वस्तु या चीज कुछ भी हो, वैसी की वैसी दूसरी नहीं. अद्वितीय. ओके, यूनिक मीन्स अनलाइक एनीथिंग एल्स. अद्वितीय. Okay students, now what you have to do, you have to take a screenshot now. So take the screenshot of the word meanings. Yes students, now what we are going to do, we are going to read the chapter now. Now you can see beside me on the board there is a paragraph. What you have to do, you have to see the paragraph properly. Those students who are having the textbook, you can use your textbook, and those students who are not having the textbook, please keep concentration on the board. Listen to the words properly. Listen to the explanation what I am explaining you. Okay, keep concentration while I am explaining you. Now let's start. What today I am going to explain you the page number 2 of your chapter 1. Okay, in previous class I have already explained you about how the APJ Abdul Kalam struggled and what happened and who was his best friend and who was his good mentor. Means जो विश्वसनीय जो मीन्स सलाहकार होता है, उपदेशक होता है, वो कौन है? शमशुद्दीन. कौन था? शमशुद्दीन. जिनकी केवल वही एकमात्र एक ऐसे उनकी एजेंसी थी जहाँ पर वो क्या करते थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर. ओके, क्या करते थे? वो अखबारों को बांटा करते थे. वही एक ऐसे इंसान थे जो क्या करते थे? एपीजे अब्दुल कलाम को हर एक चीज़ों के बारे में अच्छी बातें उनको समझाते थे, उनकी लिमिटेशंस के बारे में वो क्या करते थे? उन्हें समझाया करते थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर. Shamshuddin's newspaper distribution agency was only one in the Rameshwaram. शमशुद्दीन न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, शमशुद्दीन की जो न्यूज़पेपर एजेंसी थी रामेश्वरम में, केवल एकमात्र एक ऐसी एजेंसी थी और कोई न्यूज़पेपर एजेंसी उस वक्त उस समय वहाँ पर नहीं थी. There were about 1,000 literate people in the town and he delivered newspapers to all of them. There were about means वहाँ पर क्या थे? उस कस्बे में, रामेश्वरम के उस छोटे से गांव के कस्बे में क्या मतलब वो जो कस्बा था उसमें 1000
से लगभग 1000 के लगभग लोग जो थे वो पढ़े लिखे थे, वो एजुकेटेड थे, लिटरेटेड मीन्स एजुकेटेड थे वो लोग। तो क्या करते थे शमशुद्दीन, उनको न्यूज़पेपर्स डिलीवर मीन्स बांटा करते थे उन सभी को। द पेपर कैरीड न्यूज अबाउट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट दैट वाज हेडिंग टुवर्ड्स अ क्रेसेंडो एट दैट टाइम। उस वक्त पेपर में क्या हुआ करता था, मीन स्वतंत्रता की जो भी बातें, मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो युद्ध वगैरह जो युद्ध छिड़ गया था उसके बारे में क्या हुआ करती थी, खबर हुआ करती थी, जो क्या बताती थी कि आगे क्या होगा, उस समय उस युद्ध में क्या हो रहा है, उसका क्लाइमेक्स क्या है, अंतिम चरण क्या है, उसका उस न्यूज़पेपर से पता चल जाया करता था। These news items would be read and discussed with a great gusto among everyone. This news items यानी जो भी खबर आती थी वो इन लोगों के बीच में क्या होता था, वो डिस्कस करते थे, यानी एक दूसरे के बीच में विचार विमर्श हुआ करता था। ग्रेट गस्टो मीन्स बहुत ही एंथुजियाज्म और एंजॉयमेंट मीन्स मनोरंजन के साथ, उत्साहता के साथ, आनंदता के साथ वो क्या करते थे, उन खबर के बारे में एक दूसरे से वो बातें किया करते थे। There would also be news from the war front about Hitler and the Nazi army. There would also be the news from, यहाँ तक कि उसमें न्यूज़ किसके बारे में हुआ करती थी, फ्रंट पेज में युद्ध के बारे में भी खबर हुआ करती थी, जो हिटलर और नाजी आर्मी के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ था उसके बारे में भी खबर पहले ही पृष्ठ पर आया करती थी, जो पहला अखबार का पहला पन्ना जो होता है, जो पेज नंबर 1 होता है उसमें। Of course, there were many mundane matters too. उसके फिर भी उसमें मतलब कई बार ऐसी चीजें अखबार में हुआ करती थी जो मतलब मामूली सी बातें हुआ करती थी, उसके बारे में क्या होता, which were consulted with utmost interest, जिनके बारे में भी वो क्या करते थे, बहुत ही अत्यधिक विचार विमर्श करते थे, यानी उसमें भी वो क्या करते थे, अटमोस्ट अत्यधिक रुचि लिया करते थे लोग। द तमिल पेपर दिनामणि was the most popular of all these papers. उस वक्त कौन सा पेपर ज्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था, दिनामणि। कौन सा था, तमिलनाडु का दिनामणि अखबार जो था, जो न्यूज़पेपर था वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। The way the papers reached रामेश्वरम was quite unique. जिस तरीके से रामेश्वरम में अखबार पहुंचाए करते थे वो अद्वितीय थे, मीन्स मैंने आपको बताया था कि उस जैसा कुछ और ना होना, तो अद्वितीय। They came by morning train and were kept at रामेश्वरम स्टेशन। वो सुबह की ट्रेन से वहां पहुंच जाया करते थे और रामेश्वरम स्टेशन पर रख दिया जाता था उनको। From there they had to be collected and sent to the subscribers, जहाँ से उन्हें एकत्रित करके वो क्या करते थे, हर एक सब्सक्राइबर्स यानी ग्राहक जो होते थे उन तक उन अखबारों को पहुंचाया करते थे। This was शमशुद्दीन्स business and he managed it effortlessly. यही शमशुद्दीन का बिजनेस था, यानी कार्य था, व्यापार था, जिसे उन्होंने बहुत ही एफर्ट से, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम से उन्होंने उस काम को संभाल रखा था। However, as World War II raged, we no longer remained isolated from the world, and if it affected my life and the newspaper's delivery business in a strange new way. जैसे तैसे वो अपने खबर को क्या करना, मतलब न्यूज़पेपर की जो एजेंसी उन्होंने चला रखी थी वो क्या करते थे, ग्राहकों तक पेपर्स पहुंचाया करते थे। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, छिड़ गया था, तो उसमें क्या हुआ, वी नो लॉन्गर रिमेन्ड आइसोलेटेड, यानी हम बहुत लंबे समय के लिए क्या हो गए, आइसोलेटेड, यानी मतलब हर एक वस्तु से, मतलब जैसे कि अकेलापन हो जाना, दूर हो जाना उस हर एक चीज से। एंड इट अफेक्टेड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी पर क्या किया, प्रभाव डाला। मीन्स उस चीज से कहते हैं ना कि किसी चीज का कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी पर भी कुछ प्रभाव हुआ। एंड द न्यूज़पेपर डिलीवरी बिजनेस, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर का जो डिलीवरी बिजनेस था वो भी एक अलग ही मोड़ पर जा पहुंचा। The British government had placed sanctions and rations on goods. ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उन्होंने नंबर ऑफ सैंक्शंस मीन्स मतलब जब कोई लॉ, एक कानून होता है, एक नियम होता है, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है
तो क्या किया जाता है, उनको दंड दिया जाता है। तो एक पेनाल्टी लगाई गई उस पर, हर एक चीज पर, रेशंस पर, यानी जो भी सामान पदार्थ वगैरह आते थे उन पर। समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी नाउ प्रिवाइल्ड इन द कंट्री। ऐसे लगने लग गया था कि जैसे कि एक आपातकालीन, हमारे राज्य में कुछ आपातकालीन स्थिति सामने आ गई है, जो अभी भी मतलब प्रिवेंट इन द एग्जिस्ट, यानी उस वक्त, उस समय, उस हमारे इस देश में यानी कंट्री में था। Our large family felt the difficulties acutely, मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने क्या किया, मुसीबतों का उन्हें सामना किया। फूड, क्लॉथ्स, the needs of the household all became difficult to procure and provide for, जैसे कि खाना हुआ, कपड़े हुए, और हर एक ज़रूरतमंद जो घरेलू चीज़ें हुआ करती थी, हर एक चीज़ के लिए क्या करना पड़ा, उन्हें मुश्किलें होने लगी प्राप्त करने के लिए। Our family was large, हमारा परिवार जो था वो बहुत ही बड़ा था। My grandmother, my mother had to stretch every resource to the utmost to keep everyone fed, clothed and in a good हेल्थ। हमारे परिवार में मेरी माँ और मेरी दादी जो थी वो क्या करती, हर एक लोग के लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ों को क्या करती थी, वो अधिकतम मात्रा में उनका, मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि कम चीज़ है तो उसको कैसे, किस तरीके से हमें उपयोग में लेना है, उस तरीके से वो उसको हर एक व्यक्ति को वो, ताकि फेड का मतलब होता है फीड करना। दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड feed, okay, fed, fed, fed is the past form of the word feed। क्लॉथ and in a good health, ताकि वो स्वस्थ रहे, उनका परिवार जो है वो स्वस्थ रहे। इन चीज़ों का, सब चीज़ों का किसने ध्यान रखा, एपीजे अब्दुल कलाम की दादी जी ने और उनकी माँ ने। मतलब जब युद्ध हुआ तो उस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। शमशुद्दीन केम अप विद अ प्रपोजल, तब क्या हुआ, शमशुद्दीन जो थे वो एक प्रपोजल के साथ हमारे सामने आए, जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। वन फॉल आउट ऑफ द कंडीशंस वाज दैट द रेल स्टॉप एट रामेश्वरम स्टेशन हैड बीन डन अवे विथ। सबसे बड़ी बात क्या थी कि वन फॉल आउट ऑफ द कंडीशंस, वन फॉल आउट द कंडीशंस मीन्स का मतलब होता है एक ऐसा परिणाम जो बहुत ही भयानक होता है, जिसके लिए हमें कोई मीन्स एक ऐसी घटना जिसके लिए कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। Was the rail stop at Rameshwaram station had been done away with, what would happen to our papers then? जैसे कि वो क्या होता था कि रामेश्वरम में जो पेपर आते थे वो कैसे आया करते थे, एक सुबह की जो ट्रेन होती थी उसके मुखांतर वो पेपर्स स्टेशन तक पहुंचते थे। लेकिन अब क्या होगा, how were they to be collected and then distributed to all the people of the town who were looking forward for their daily dose of news? तो अब हम कैसे उन पेपर्स को एकत्रित करेंगे, फिर कैसे हम लोगों तक उन पेपर्स को, अखबारों को पहुंचाएंगे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, रोजाना की तरह वो उन खबरों के, अखबार का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो खबर पढ़ सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ what you have to do, you have to read the chapter 1, whatever para I have explained you now on the board, you have to read that properly, and after that, together that you have to learn all the word meanings of this chapter. Okay, have a nice day.